Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. Student, in this class, in this English text class, as you know that we have already started unit number 5 named Historical and Cultural Places of Pakistan, in which we are reading about some oldest civilizations, some oldest places in Pakistan in all 4 provinces of Pakistan, Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. So let's continue again. Open page number 99. So as you know that in the last class we stopped here. Now we are going to start from here. It is now I am going to start reading and then I will explain it, inshallah. It is now time to go to another site worth visiting, which is Rahman Dheri, situated 22 kilometers north of Dera Ismail Khan in Khyber Pakhtunkhwa. This fortified town is dated about 3300 BC and was abandoned around 1900 BC. Rahman Dheri shows 3 different periods. It is one of the oldest urbanized centers found so far in South Asia and shows signs of town planning. The settlement was probably well planned in its earliest phases, and these plans were followed in the later stages. Our final stopover will be in Takhtibai, where people of the Zoroastrian religion, the religion of the Parsis, lived before this area was taken over by the Buddhists. Takhtibai is located at about 15 km from Mardan in Khyber Pakhtunkhwa. It was built in 4 periods, beginning from the 1st century BC and continuing up to the 7th century CE. There are 4 main areas of this complex. The stupa court, which is cluster of stupas located in a central courtyard. The monastic chambers, which consist of individual cells arranged around a courtyard, assembly halls and a dining area. A temple complex which consists of stupas similar to the stupa court but of later construction, and the tantric monastic complex which consists of small dark cells with low opening which may have been used for certain forms of meditation. Our 2-day trip has come to an end, but our journey into the past of Pakistan has just begun. There is so much ancient history here that we will need months, if not years, to really visit each site in order to understand and appreciate this variety of culture and diversity of faith that has shaped this country over several millenniums. We are indeed the proud inheritors of a great ancient heritage. So, Alhamdulillah, we finished reading, and I'm going to explain you about these sites, these remaining sites. The second last is Rahman Dheri. It is in Khyber Pakhtunkhwa. It is one of the provinces of Pakistan, and it is in Dera Ismail Khan. And it is also 22 km away north of Dera Ismail Khan, and this is also fortified town. Fortified, as I told you in the previous class, कि जो अपने सिटी को सिक्योर और स्ट्रॉन्गर करने के लिए पहले क्या होता था कि उसकी सराउंडिंग्स हैं, उसके चारों अतराफ़ में जो है वो वॉल्स जो हैं बहुत ही मजबूत वॉल्स जो हैं वो खड़ी कर दी जाती थी कि नो वन कैन डिफीट दैम, नो वन कैन एंटर, no one can attack them. So this fortified town is dated about 3300 BC and was abandoned around 1900 BC. And Rahman Dheri shows 3 different period. ये इसके भी जो इसके ruins हैं वो 3 periods को शो करते हैं, और ये भी बहुत ही ओल्डेस्ट अर्बनाइज्ड सेंटर था, यानी बहुत ही सिविलाइज्ड सोसाइटी थी ये लेकिन पुरानी बहुत ही, लेकिन जो है वो साउथ एशिया की यानी जनूबी एशिया की सबसे पुरानी जो है अर्बनाइज्ड
जो है वो ये आबादी थी। एंड शोज द साइंस ऑफ टाउन प्लानिंग, और इसकी बहुत अच्छे यानी इसके जो रूइंस हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी बहुत अच्छी हुई थी। और अर्लीस्ट स्टेज की जो टाउन प्लानिंग है उन्हीं प्लान्स को फॉलो करते हुए जो है लेटर स्टेजेस यानी आगे वाले स्टेजेस की प्लानिंग की गई थी। सो इनके पास बहुत अच्छा जो है वो एक प्लान सिटी था। द सेटलमेंट वॉज प्रोबेबली वेल प्लान इन इट्स अर्लियर फेज, एज आई टोल्ड यू कि बहुत वेल प्लान थे, वेल ऑर्गेनाइज थे, हाईली ऑर्गेनाइज थे, और अर्लियर फेजेस से ही ऐसे ही थे, ऑर्गेनाइज थे। लेकिन और यही प्लान्स, यही स्ट्रैटेजीज़, यही सारी चीज़ों को फॉलो किया गया लेटर स्टेज में यानी बाद के स्टेज में, बाद के अदवार में। और फाइनल ट्रिप अपना ये लोग कहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द तख्ते भाई। ये भी ये भी जो है वो आपका खैबर पख्तूनख्वा में है। और यहाँ पर जो रूइंस मिलते हैं, यहाँ जो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस लगता है, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बनाया था कि बुद्धिस्ट थे, इसी तरह यहाँ पर ज़ोरेस्ट्रियंस कौन होते हैं, जो कहते हैं आँख की पूजा करने वाले लोग होते हैं। ये जो पारसीज़ होते हैं इनको ये लोग जो है उनका जो रिलीजन कहलाता है वो ज़ोरेस्ट्रियन कहलाता है। जैसे हमारा मुसलमानों का रिलीजन इस्लाम होता है, हिंदुओं का रिलीजन जो है वो हिंदुज़म होता है, इसी तरह बुद्धिज़्म यानी बुद्ध मत के वो फॉलोअर्स होते हैं। ये कुछ आपको यहाँ पर आपने नए रिलीजन्स के जो बड़े बड़े रिलीजन है इस्लाम के बाद, तो उनके नाम सुने जो इस्लाम से पहले थे लेकिन सब इस्लाम के आने के बाद ख़त्म हो गए। बहरहाल लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो ये पारसीज रिलीजन के लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे, और बिफोर दिस एरिया वॉज टेकन ओवर बाय द बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट के इस एरिया पे कब्ज़ा करने से पहले जो है वो कौन रहते थे, पारसीज रहते थे। तख्त भाई इज़ लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम मर्दान। ये जो है खैबर पख्तूनख्वा के सिटी में है, मर्दान में है, और जो है ये 4 पीरियड्स में बिल्ड हुआ था। बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, कब से स्टार्ट हुआ है इसकी जो है इसकी सेटलमेंट कब स्टार्ट हुई है, फर्स्ट सेंचुरी में हुई है, एंड कंटिन्यूइंग अप टू द 7th सेंचुरी CE। और मैंने आपको लास्ट टाइम शायद फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि CE और जो AD होता है वो आर द सेम टर्म्स। और AD का मतलब मैं दोबारा आपको रिकैपिचुलेट कर देती हूँ कि जब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश के बाद का जो साल है वो उसको जो है वो सारा जो है वो AD में आ जाता है, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के साल हैं उनको ये लोग जो क्रिश्चियन कैलेंडर में जो है वो BC के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब दे आर टेलिंग अबाउट द 4 मेन एरियाज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले ये एक स्टूपा कोर्ट की बात करते हैं जो है जहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्टूपास है। मैंने आपको बताया था कि सेमी सर्कल शेप के जो है इनकी इबादतगाहें होती हैं, तो उनका क्लस्टर जो है वो आपको मिलेगा सेंट्रल कोर्ट यार्ड में। तो ये एक ये बिल्डिंग है द स्टूपा कोर्ट। दूसरा जो है मोनास्टिक चैम्बर्स है, जिसमें इस तरह जैसे जो है उसमें छोटे छोटे सेल्स टाइप के, यानी सेल्स का मतलब इट्स का सॉर्ट ऑफ रूम्स, और जिसमें सिर्फ एक ही आदमी जो है वो खड़ा हो सकता है। वो कोर्ट यार्ड के जो सहन होता है उसके पूरे इर्द गिर्द बने हुए इबादत के लिए ये लोग बनाते हैं, क्योंकि ये अकेले इबादत करते हैं, यानी इंडिविजुअल इनकी इबादत होती है, यानी अकेला बंदा ही इबादत करता है। और असेंबली हॉल्स भी हैं उसी में, और उसमें एक डाइनिंग एरिया भी है जहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। इसके अलावा जो 3rd बिल्डिंग है वो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि स्टूपा कोर्ट था, इसमें भी स्टूपास हैं। जैसे ये स्टूपा कोर्ट था बट लेटर कंस्ट्रक्शन, लेकिन बाद की कंस्ट्रक्शन में ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहलाया गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो 4th एंड द लास्ट बिल्डिंग है वो टेंट्रिक मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो है स्मॉल डार्क सेल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकी इबादत का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इंडिविजुअल इबादत करते हैं, छोटे छोटे, बस जिसमें एक आदमी बिल्कुल खड़ा या बैठ सके, इस तरह के रूम्स बने होते हैं, बहुत डार्क होते हैं, उसकी लो ओपनिंग्स होती हैं, और जो है वो ये इसमें जो है वो एक ख़ास किस्म की मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो खुदा के करीब ले जाए, यानी मुराक़बा करते हैं, और इनकी एक अपनी इबादत का एक तरीका है।
आर 2 day ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड। ये हमारा 2 days का, मैंने आपको बताया था कि इन सारी जगहों के लिए कितने दिन का हेलीकॉप्टर का ट्रिप था। इट वॉज अबाउट 2 day, बट आर जर्नी इन टू द पास्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ जस्ट बिगिन। बट ये सब इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है कि हमारा तो जर्नी जो है वो अब स्टार्ट हुआ है। वी आर क्यूरियस, we are enthusiastic to learn all these things, our past rich history. There is so much ancient history here that we will need months, यानी इतनी rich history है कि हमें months, साल नहीं तो months तो लग जाएंगे to really visit each site in order to understand, इन साइट्स को विज़िट करने के लिए, समझने के लिए, और इतनी वैरायटी ऑफ कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए, और जितनी डाइवर्सिटी आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, आप फर्स्ट टर्म में ये वर्ड आया था, वैरायटी को कहते हैं। जितने डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट मज़ाहिब, डिफरेंट जो रिलीजन के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो है वो कितने सालों से, हज़ारों सालों से जो है हमारी कंट्री पे जो है वो रह रहे हैं। वी आर इंडीड एंड वी शुड बी प्राउड। हमें अपने फ़ख्र होना चाहिए इस इतने रिच विरसे पे कि जो है हमारे पास इतना अच्छा एक अजीम और क़दीम विरसा है कि जो और दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। सो वी आर इंडीड द प्राउड इनहेरिटर्स हैं। हम बिलाशुबा एक अजीम और क़दीम विरसे के फ़ख्रिया वारिस हैं। So this is all about this chapter. It was great. After doing reading along with explanation, we come to the exercises. On page number 101 पे हमारे पास exercises हैं. Exercise number 1 and related to the reading comprehension exercises हैं, यानी आपके जो आपने text पढ़ा है उसी से related आपके पास exercises given हैं. What is exercise number 1? Read the text and write down the total number of sites covered in each province. आपको क्या करना है कि आपने बने एज आई टोल्ड यू कि 4 प्रोविंसेस में आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं, किसी में 1 है और किसी में 2 हैं, तो आपको ये यहाँ पर जो है नंबर ऑफ साइट्स जो है वो मेंशन करने हैं. फर्स्ट है डैश कवर्ड इन सिंध. इन हाउ मेनी साइट्स वर कवर्ड इन सिंध, कितनी साइट्स जो हैं वो सिंध में हैं, आप बताइए. देर आर ऑब्वियसली देर आर 2 साइट्स, Mohenjo-daro and Bambor. So what I am going to write here, I am going to write here 2. So what should I write here? I have to write here 2. Okay. Dash, the second is dash covered in Balochistan. So as you know that there is only one site in Balochistan, that is Nandawari. So what I am going to write here 1, O-N-E 1. Then in the same way you will have to fill up all the blanks. Dash covered in Punjab, dash covered in Khyber Pakhtunkhwa. The B part is the journey will be undertaken in a dash. जो आपको पता है कि ये किसके थ्रू जो ये जर्नी हुआ था, यानी किसमें जो है इन्होंने सफ़र किया था. ऑब्वियसली इट इज़ बाय हेलीकॉप्टर. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू हैव टू राइट हियर हेलीकॉप्टर एंड विल टेक डैश डेज. कितने डेज़ का ये जर्नी था, ये एक्सकर्जन था. इट वाज अबाउट 2 days. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे. Okay, now we have come to exercise number 2. What is exercise number 2? As you have done, you know, as you already know कि कैसे करते हैं ये सॉल्व. यहाँ पर आपके पास words are given and their meanings are given in a jumbled way. आपको जो है correct meaning से match करना है and we will have to write the answer in the answer column. So we read the question. Column A has the words. कॉलम ए में आपके पास वर्ड्स हैं. कॉलम बी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द जम्बल्ड ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट मीनिंग एंड राइट द आंसर इन द आंसर कॉलम. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि आपको करना क्या है. द फर्स्ट दे हैव डन फॉर यू थ्राइव्ड. थ्राइव के लिए जो है व्हाट इज़ द मीनिंग, एज आई टोल्ड यू कि इसका मतलब होता है ग्रो करना या प्रॉस्पर. तो आप देख लीजिए व्हाट इज़ द सुटेबल मीनिंग. इट इज़ एट ई, grew and develop. So what they have written here in the answer column 1E.
देन वी हैव अ नेक्स्ट वर्ड अबेंडन. अबेंडन मीन्स होता है टू लीव या खाली कर देना, बिकॉज इट इज़ इन पास्ट फॉर्म, तो आप जो है इसका मीनिंग भी जो है वो आपके पास्ट फॉर्म में आएंगे. एंड व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग हियर, लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग. इट इज़ एट आई. यू कैन सी हियर द राइट आंसर, लेफ्ट फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए किसी चीज़ को छोड़ देना. जगह को भी हो सकता है और किसी चीज, समथिंग और सम प्लेस भी हो सकता है. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर, I have written the answer in the answer column 2i. Next word we have preserved. Okay, and then we have urban settlement, prehistoric, mound, ruins, fortified, stupas, and meditation. And I think so it will be quite easy and interesting for you to find out the meanings among the jumbled meanings. Okay, students, I am going to show you the homework. As you can see, the homework is read the chapter and do exercises 1 and 2 are given at page number 11. आपको ये एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ब्लैंक्स और मीनिंग्स वाली, आपको अपने ये होमवर्क में करनी है. काइंडली नोट डाउन द होमवर्क. इंशाल्लाह ताला आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.